and the short note. So one of the most important is the Plummer Vinson syndrome. Plummer Vinson syndrome. It's actually a disease of the pharynx. So that's why we are at the site of the pharynx. So Plummer Vinson syndrome. The name is there, Plummer Vinson syndrome. It means there is a 2-3 things must be behind this syndrome. Okay. The other thing is a chronic hypopharyngitis. The name is a hypopharyngitis. Chronic hypopharyngitis. These are the names of the disease. You should not be confused at the time. When there is a name other, you should not be confused. Chronic hypopharyngitis, Patterson-Brown-Kelly syndrome. These are the names of this Plummer Vinson syndrome. This is more common in female. And the cause is behind is an anemia. Iron deficiency anemia. The cause is behind is a iron deficiency anemia. That's why it is more and more common in rural population of our city. Most of the time we have a case of a dysphagia. A lot of females in our ward complain with the dysphagia. And the cause is behind is a microcytic anemia. Iron deficiency anemia due to a poor nutrition and deficiency of the vitamins. The disease which takes place is named as a Plummer Vinson syndrome. The disease when take place, what happened? There is a things which are present in this. Number one priority is a dysphagia. Top list priority is a dysphagia. And second is a glossitis. Number 3 is a angular stomatitis. Number 4 is a colinekia. And number 5 is the iron deficiency anemia. These are the track of the syndrome. These things are present in these patients. You know these females when come, we have attended in OPD or the private cases. There is an angular stomatitis and there is a glossitis, a severe anemic. They have a puffy face, look like anemic, pale. These are all things, and there is a colinekia, that is a spoon-shaped nail. And simply, if we define the colinekia, it means there is a spoon-shaped nail. नाखून धसे होंगे नीचे, बैठे होंगे नाखून. These are the signs which we are observed in that patient. The one thing which patients say that is the difficulty to eating and drinking. Initially, this thing is a start with solid things. कि मुझे रोटी खाने में तकलीफ होती है, या कोई भी सख्त चीज जो है वो मेरी फंस जाती है, रुक जाती है, नीचे नहीं जाती गले से. उसके बाद जब सीवियरिटी बढ़ जाए तो फिर क्या होता है कि अब पानी पीने में भी मुझे मुश्किलात आ रही हैं. These are the pre-malignancy sign, and later it converted into CA of the post-cricoid region. Later it converted into CA, malignancy.
That's a dangerous disease. If you have not taken any notice immediately, later on it converted into malignancy. Why? Because due to anemia, there is a atrophic change in the mucosa of the pharynx. What happened? In subepithelial tissue, there is fibrosis. In the subepithelial tissue, there is a fibrosis. And when there is a fibrosis, it shrinks the area, it closes the area, and that have difficult to eating and drinking. And this disease occur by, there's a one thing is that in our mucosa, our esophagus, there is a red pack appearance. जैसे आपने तौलिए को देखा होगा कि लेयर्स होती हैं और फिर जब तौलिया धो धो के खराब हो जाए और वो सारे धागे निकल जाए कितना प्लेन हो जाता है, इसको कहते हैं रेड गैट्स, अपीयरेंस लॉस्ट हो जाती है। ग्लाइकोजन जो सेल होते हैं वो यहाँ पर बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से सभी एपिथेलियल लेयर्स के अंदर जो है फाइब्रोसिस डेवलप होती है और ये फाइब्रोसिस जो है नैरोइंग करती है और पहले ही क्राइकोफेरेंक्स जो है एरो इसोफेजियल ट्रैक्ट जो है नर्वस बॉडी एयरवे ट्रैक्ट है, इस मुकाम पर जहाँ म्यूकोजा एंड होता है यानी फेरेंक्स एंड होती है और इसोफेगस शुरू होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्राइकोफेरेंक्स। वो पहले ही नैरो होता है और ये डिजीज उसको और फर्दर नैरो कर दी है और फिर क्या होता है? वेब फॉर्मेशन हो जाती है। क्या बनती है? वेब, एक झिल्ली बन जाती है जो कि रुकावट डालती है हमारे खाने पीने में और पानी पीने में, खाने पीने में और पानी में रुकावट डालती है। तो ये सारे कंप्लेंट दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे कि जब एनीमिया अपने हदों को छुएगा तो पेशेंट की तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। If you have not respond early, then these things are converted into CA or malignancy. These are converted into malignancy. There is no accurate cause is written there that this thing caused the Plummer Vinson syndrome, but mostly these are seen in people which have vitamin deficiencies, iron deficiency, anemia. These things we have observed in that poor ladies. So mostly that's why this disease is a common in females. Now the thing is arise that how we investigate these disease, investigations. So you mind it, here there is a one key investigation and that key investigation is a barium swallow. So that should be question in your basic you that in cases of a dysphagia, which investigation is a key investigation. So you have ticked barium swallow is a key investigation of a dysphagia. Why? Because these things showing a feeling defect when a dye is passed from the pharynx up to the esophagus, we have observed the feeling defects. That feeling defect show that there is a wave formation or there is a problem or there is a pathology in the hypopharynx. So it is a disease of hypopharynx. Pharynx is involved, esophagus is involved, upper part of the esophagus, not lower part only. Upper part of the esophagus is involved and there is a fibrosis is formed. So key investigation is a barium swallow, barium. Second one is the, you have a picture of the blood CP. Blood CP. Blood CP. Blood. अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाए, कोई बताएगा कि what is blood? Connective tissue. जी. What is blood? Blood is a connective tissue of what? Blood cells and plasma. What? Blood tissue? Connective tissue of what? Connective tissue को यही है कहीं और भी होते हैं? तो आप नाम लें ना पूरा, आप डेफिनेशन ही नहीं सही कि ब्लड अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो किसका? वेस्कुलर सिस्टम का भाई,
वेस्कुलर सिस्टम कितने पार्ट होते हैं वेस्कुलर सिस्टम? ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कौन कौन से? प्लाज्मा एंड सेल्स। हैं? ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ये पार्ट होते हैं या और कोई पार्ट होते हैं? कितने परसेंट जो है सॉलिड होता है, कितने परसेंट लिक्विड होता है? 60% बताएं भाई। 45 जो होता है उसमें कौन कौन से होते हैं और 55 में कौन कौन से होते हैं बताएंगे? 55%। ब्लड ही नहीं पता, आगे तो बात की बात है, एनीमिया देखेंगे बाद में बात है, कैसे बताएंगे? हीमोपाइसिस क्या होता है? जी, हीमोपाइसिस ब्लड इन स्प्यूटम। कहाँ? बोन मैरो में, बिल्कुल सही बताया ये आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल थ्रू बोन मैरो, ठीक है। कैसा होता है रेड ब्लड सेल? क्या शेप होती है? पूरा बताएं क्या होता है? तो आपने बताया नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, बाइपोलर होता है, बाइकेम क्या होता है? सिर्फ एक बात बता के आप कैसे कर सकते? चले मर्जी आप लोगों की, ठीक है। तो सेकंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड, यहाँ आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? कहाँ से? एक बोले पता ही नहीं पड़ रहा क्या कह रही है, ऐसे सर वो सारी की बातें एक कोई बताए तो क्या होता है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट और क्या होता है दूसरा फंक्शन? अरे यार बता ली क्या हो गया भाई, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है लंग्स से और पहुंचा रहा है आपके टिश्यू को, और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके दोबारा पहुंचा रहा है लंग्स में। इसमें कौन सी थ्योरी है जो इतनी जो है वो कुर्बानी वाली बातें कर रहे हैं, काला कलर और नीला कलर? सीधी सीधी क्यों नहीं बातें उसमें बताती? ठीक है जनाब, चलें फिर दोबारा पढ़ लेंगे जाके। ब्लड सीपी, इसी इंग्लिश को कहते हैं क्लिनिकल ब्लड पिक्चर। अगर आपको इन चीजों का पता होगा तो आप उसमें देखेंगे, नहीं पता होगा तो सर को जाती रहेंगी अब क्या करूं मैं इसमें, क्या करूं इसमें। तीसरी चीज एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी करेंगे हम इसकी और देखेंगे कि अगर कोई यहाँ पर ग्रोथ कोई बात है तो उसको बायोप्सी के लिए लेंगे, वरना ब्रोकन करेंगे किसको? वैट को, ब्रोकन करेंगे वैट को। ये क्या है? इन्वेस्टिगेशंस, कैसे हम इस केस को इन्वेस्ट करेंगे। अब है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये है कि आप इसकी डाइट को इंप्रूव करेंगी, विटामिन फुल डाइट देंगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को टॉप पे रख के आप करेक्ट करेंगी, टॉप पे रख के करेक्ट करेंगी। और अगर वेव बन गई है तो एंडोस्कोपी करेंगी ताकि वेव को आप ब्रोकन करके उसको खोल सकें। इसोफेगस को आप डायलेट करेंगी यहाँ से इस पार्ट को एंडोस्कोपी के थ्रू, और आप इसको डाइट और हैबिट इंप्रूव कराएंगी ताकि इसकी न्यूट्रिशन और विटामिन डेफिशिएंसी पूरी हो और ये दोबारा अपनी सर्विसेज पर पहुंचे, बहाल हो। और अकॉर्डिंग टू सिम्प्टोमेटिक आप कोई प्रॉब्लम पैदा हो रहा है उसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करेगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट आपके जहन में आ गई अकॉर्डिंग टू कॉज, समझ रहे हैं? कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, सारी चीजें उसी को सामने रख के ट्रीट करनी है जो चीजें पैदा हो रही है। हमें डिजीज का पता लग गया किन लोगों में है, कैसे ट्रीट करना है। इसी की दूसरी डिजीज है जो पूछी जाती है, उसको क्या कहते हैं? विंसेंट एंजाइना। क्या कहते हैं? विंसेंट एंजाइना, ठीक है। विंसेंट एंजाइना ये भी एक डिजीज है फेरिंक्स की। इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है फेरिंक्स में, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है फेरिंक्स में, और जो है इसको काज करने का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ग्राम नेगेटिव
फ्यूसिफॉर्म बेसिलस बैक्टीरिया, स्पायरोकीट भी कहते हैं उसको, और डेंटोला लफ्ज भी लिखा है। ये पूरा इस बैक्टीरिया का नाम है जो काज करता है इस डिजीज को। इसको क्या कहते हैं? विंसेंट एंजाइना। विंसेंट एंजाइना ये किन लोगों में पाया गया? ये ट्रेंच वॉर जो हुई थी, जिनमें खंदकें खोदकर आगे महाज पर जो सिपाही होते थे, उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपनी हाइजीनिक कंडीशन को बरकरार रखें, टूथपेस्ट करें, या वहां सहूलत हो के टूथपेस्ट पहुंचे, या उनके मुंह के अंदर जो खा रहे हैं बस हफ्ते हफ्ते वहां पर उनकी खंदकों में रगले मोर्चों पे ड्यूटी है। तो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से उनके अंदर जो बीमारी पैदा हुई, उस बीमारी को नाम दिया है विंसेंट एंजाइना का। और काजेटिव ऑर्गेनिज्म आपके पास आ गया ग्राम नेगेटिव फ्यूसिफॉर्म बेसिलस स्पायरोकीट। ओके, और जो है ये उन लोगों के अंदर मिलता है। ये क्या करता है? ये अल्सर फॉर्म करता है। कहां पर? फेरिंक्स पे, सॉफ्ट पैलेट पे, टॉन्सिल की साइड पे। ये ग्रे रंग की, ग्रीनिश रंग की एक लेयर बनाता है इस पार्ट के ऊपर, जो नाम लिया आपको, फेरिंक्स पे, यूविला पे, सॉफ्ट पैलेट जिसको कहते हैं ये, और साथ में साइड के टॉन्सिल पर। ये पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा डिजीज, और टेम्परेचर हाई ग्रेड का होता है। मुंह से फिटेड और स्मेल आती है ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशन, या बैड ओरल स्मेल आती है, बैड ओरल हाइजीनिक कंडीशन की वजह से। समझे नहीं? तो ये हमें इन फौजियों के अंदर, इस ट्रूप्स के अंदर जो है ये डिजीज मिली, जिसको यहाँ ट्रेस किया गया। इसको कहते हैं विंसेंट एंजाइना। विंसेंट एंजाइना। और इसको जब रिमूव करने की लेयर को कोशिश करते हैं, तो रा एरिया और ब्लीडिंग उन पेशेंटों के अंदर फिर होती है। कच्चा बिल्कुल जिसका एरिया होता है उसको कहते हैं रा एरिया, में उतारते हैं इसको किसी चीज से। तो ये चीज हमें यहाँ पर मिलती है इन लोगों के अंदर। समझ रहे? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत सिंपल है। वो इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं कि थ्रोट स्वैब टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? थ्रोट स्वैब कल्चर टेस्ट करते हैं। उसके अंदर हमें ये बैक्टीरिया मिलेगा, उसके अंदर हमें ये बैक्टीरिया मिल जाएगा। और दूसरा जो है हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये थ्रोट स्वैब कर लिया है। दूसरा आप इसके अंदर किस पे जाएंगे? ब्लड सीपी पे। तो कितनी अहम हो गई ये ब्लड सीपी आपके लिए जानना, इससे आइडिया कर लें। ठीक है, जिसको आप ऐसे ही सरसरी लेके आ गई यहाँ फिजियो पढ़ के कि क्या उसके अंदर होता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलेगी। इन चीजों के अंदर क्या बढ़ गया भाई, इसका व्हाइट सेल गिर गए, बढ़ गए, आरबीसी गिर गए, कम गए, प्रोटीन बाइंडिंग टूट गई, फूट गई, सारी चीजें हमें, हीम क्या है, पायोसिस क्या है, ये सारा सिस्टम मिलेगा। आप पढ़ते होंगे रिपोर्टों में एंडोसाइटोसिस, पाइक्रोसाइटोसिस, टूटे फूटे, दुम नहीं है, ये नहीं है, उसकी ये सारी आपकी फिजियोलॉजी वहाँ पर मौजूद है, जो कि आपके फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के अंदर लिखी हुई है। मेरा ख्याल एकदम मेरा नज़र गुजरी थी प्रैक्टिकल से, फिजियोलॉजी के ब्लड से, तो आई थिंक उसमें लिखा हुआ मेड प्रोफेसर हाजरा, और प्रैक्टिकल उसमें ब्लड, उसमें यूनिफॉर्म टेस्ट, इस तरीके की कुछ चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। तो बेसिक माय आइडिया वो कहते हैं कि हम दे देते हैं, फिर ये लोग भूल जाते हैं। उन्होंने कहा हम देते हैं डॉक्टर साहब, ये भूल जाते हैं। मैंने कहा ट्यूनिक फाक की तो आपने बहुत सारी बातें यहाँ नहीं लिखी, कह लगी इतनी हम देते हैं फिर बाकी आप देना। मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी हम देंगे ट्यूनिक फाक। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन करानी है इनकी, और ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों की हमने 3 बातों में मदद करनी है। एक तो ये कि बैड ओरल हाइजीनिक कंडीशन को ट्रीट करना है, उनको किसी भी तरीके से ला के उनके मुंह की सफाई करवानी है, ठीक है ना, ताकि ओरल हाइजीनिक कंडीशन इंप्रूव होगी तो इस डिजीज को रोका जा सकेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है हमने क्या करना है, इन लोगों को अच्छी प्रोटीन और हेल्दी डाइट देनी है, ताकि बैक्टीरिया के खिलाफ जो है
कारामद हो। और तीसरी चीज ये होती है कि इसको हम लोगों ने ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम जो है एक अच्छी एंटीबायोटिक चॉइस करेंगे सिस्टमेटिकली, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को, क्योंकि लफ्ज यहाँ तक क्या ग्राम नेगेटिव लफ्ज मैंने कहा फ्यूसिफार्म वैसे, तो दोनों को जो कवरेज कर ले पॉजिटिव और नेगेटिव को, उसको हम एक चॉइस करेंगे। दूसरा उसके अंदर जो है मेन रोल कहते हैं वो मेट्रोनाइडाजोल का है। इसको कहते हैं मेट्रोनाइडाजोल, फ्लैजिल मेट्रोनाइडाजोल, ये हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ अगर बुखार है तो उसको बुखार देंगे, अगर उसको जो है इरिटेशन है तो एंटी एलर्जी देंगे, और सेप्टिक माउथ वॉश गार्गल देंगे, सेप्टिक माउथ वॉश गार्गल देंगे। ये सारी चीज देंगे हम इसको ट्रीट करने के लिए, ये सारी चीजें हम देंगे इसको ट्रीट करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस हैं बाद का, जब आप एग्जामिनर के पास जाती हैं और उसने फेरिक्स को टच कर लिया तो धड़ाधड़ ये चीजें जो है आपके सामने आएगी। इसी की तीसरी छोटी डिजीज है pharyngeal pouch, pharyngeal pouch, pharyngeal pouch। It's a disease of the pharynx. It's a disease of the pharynx. फेरिंक्स में मसल होते हैं, ठीक है जी, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, मसल्स है फेरिंक्स। तो ये डिजीज जो है बेसिकली फेरेंजियल पाउच जो है मसल की एक डिजीज है। उस मसल का नाम है इंफीरियर कंस्ट्रक्टर मसल, ठीक है। उस मसल के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है क्राइकोफेरेंजियल मसल और दूसरे का है थारो फेरेंजियल मसल। बेसिकली इन दो मसलों के दरमियान एक पोटेंशियल गैप है। क्या है? पोटेंशियल गैप है। इस पोटेंशियल गैप के अंदर से जो म्यूकोजा है उसकी हर्निएशन होती है नीचे की तरफ और इस तरह की एक पोच बनाता है। इसको क्या कहते हैं? इस डेफिशिएंसी को कहते हैं किलियन डेहिसेंस। और यहाँ से जो म्यूकोजा हर्निएट हुआ उसको क्या कहते हैं? फेरेंजियल पाउच। उसको क्या कहते हैं? फेरेंजियल पाउच। तो अब आपको समझ में आ गई कि बेसिकली ये वीकनेस है। ये यहाँ पर एक पॉइंट है जहां म्यूकोजा हर्निएट कर जाता है नीचे की तरफ और यहाँ एक बैलून की तरह एक गुब्बारा फूल जाता है। उसको किलियन डेहिसेंस का नाम देके नाम दिया है फेरेंजियल पाउच का। ये क्या करता है? ये बिल्कुल जो ईसोफेगस की लाइन है उसकी सीध में नीचे आकर ईसोफेगस को कंप्रेस कर देता है। क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। तो ऐसे लोगों को क्या चीज स्टार्ट होती है? डिस्फेजिया। क्या स्टार्ट हुआ? डिस्फेजिया। और ऐसे लोग क्या है कि खाना तो खा रहे हैं लेकिन पेट तो भर ही नहीं। खाना खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा। क्यों? क्यों? तो इस पहुंच में आ रहा है, खाना तो पहुंच में आ रहा है, तो इस वजह से जा ही नहीं रहा। तो ऐसे लोगों को आप कैसे रात को लेटते हैं तो जी जो खाते हैं ना वैसा ही निकल जाता है जी बाहर। वो तो होता ही नहीं, सादा ही ऐसा होता है, कोई वो नहीं, उल्टी वाला काम नहीं, बिल्कुल वही टुकड़े निकलते हैं जी, बिल्कुल जिस तरह जो खाते हैं हम लोग। तो मतलब यही है कि रिगर्जिटेशन ऑफ फूड हिस्ट्री होगी, जैसे स्टेट लेटेंगे रात को, रिगर्जिटेट ऑफ फूड। इतना वैसे तो इतना वो नहीं होगा, वैसे तो लंप फील करेंगे कि कुछ है गले में ना, कुछ भारीपन है, कोई चीज है,
लेकिन जैसे ही लेटेंगे तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन, वो उठ के बैठेगा, निकालेगा तो वैसे ही रोटी खाई थी जो जो फ्रूट खाया तो निकल जाएगा उसका, क्योंकि तो पहुंच में है ना, इतना नीचे तो गया ही नहीं है यहाँ से अभी तक यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, ये ओवर एक्सपेंड हो गया, और बड़ा होके और एक्सपेंड होके बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट थैली है ना, अगर उसके अंदर कोई चीज जाएगी, म्यूकोजा है, एक्सपेंड होगा तो बड़ा होगा तो ये मुसलसल ऐसे लोग डिस्फेजिया के शिकार होंगे, ये एनीमिक होंगे, पेल होंगे, वीक होंगे, वेट लॉस होगा। क्या होगा? वेट लॉस। लेकिन ऐसी बात नहीं है कोई स्मार्ट रहना चाह रहा हो और वो कहे कि कमजोर है तो इसको फ्रेजिल पाउच हो गया, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। तो फ्रेजिल पाउच के लिए मसल वीकनेस है एक्चुअली हैं क्राइकोफैरेंक्सिस के फाइबर्स ऐसे मैनेज होते हैं जी होता है ना जी मतलब उसकी वजह से होता है ना जी, लेकिन क्यों होता है अभी तो उस पे आएंगे ना कि मसल क्यों वीक हो जाता है। तो ये दो चीजें जो है यहाँ पर हमारे सामने आ गई, इसकी इस डिजीज की थीम एक सामने आई कि फ्रेंजियल पाउच है क्या, किस वजह से बनती है, कैसे बनती है, क्या कंप्लेन करती है। लेकिन अब ये चीज है कि ये डेवलप कैसे हो जाती है सर। दो एक्यूरेट तो इसमें नहीं है, लेकिन दो बातें बताई कि ये उन लोगों में होते हैं जो डबल फॉलो करते हैं, हर चीज को डबल फॉलो करने से प्रेशर पड़ता है यहाँ पर ग्लूकोजा में जो हर्निएट करता है, डबल फॉलो। दूसरा कहते हैं कि न्यूरो इनकोऑर्डिनेट हो जाता है, एक्चुअल जो थ्योरी दी है कि न्यूरल इनकोऑर्डिनेशन की वजह से ये डेवलप होता है। ठीक है, अब आपने इसको फिर इन्वेस्टिगेट करना है, तो इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन हो गई बैरियम सॉलो, वेरी गुड। दूसरा हो गई एंडोस्कोपी, तीसरी हो गई ब्लड सीपी। ठीक है, ये चीजें आप कराएंगी इसके अंदर इन्वेस्टिगेट, तो ये हमें पता पड़ जाएगा इसका। अब इसकी कोई मेडिकल तो मैनेजमेंट है ही, तो मैनेजमेंट क्या है? सर्जरी। सर्जरी जो है इसकी मैनेजमेंट है। सर्जरी में दो सर्जरी का नाम है, एक होता है ओपन सर्जरी, एक होता है ओपन सर्जरी और एक होता है बगैर ओपन सर्जरी। नहीं, लेप्रोस्कोपी में नहीं, वो तो पेट की होगी। हाँ वैसे, शाबाश। तो पहली सर्जरी का नाम है क्रायोमायोटोमी। क्या करेंगे? क्रायोमायोटोमी, मतलब जो चीज है हम उसको रिपेयर करेंगे, यहाँ जो क्रायोमायोटोमी। दूसरा है डॉलमेंस ऑपरेशन। क्या है? डॉलमेंस। इसको क्या कहते हैं? डीकैपिंग। हम एंडोस्कोप के थ्रू जाएंगे और उस जो फ्लू है उसको लेयर को काट के वहां से बंद कर देंगे दोबारा, ताकि ये हर्निएशन ना हो, तो इसको कहते हैं डीकैपिंग। ठीक है, इस ऑपरेशन का क्या नाम है? डॉलमेंस ऑपरेशन। और लास्ट और आखिरी, उसके बाद एंड कर देते हैं यहाँ फेरिंक्स को, वो है infectious mononucleosis। infectious mononucleosis, infectious mononucleosis। नाम पे जाएंगे, काम पे बात नहीं आना। infectious mononucleosis, याद रखिए, mononucleosis। दूसरा इसका नाम है ग्लैंडुलर फीवर। ग्लैंडुलर फीवर क्यों, ये भी क्लियर होगा कि क्यों ग्लैंडुलर फीवर। ठीक है जी, ग्लैंडुलर फीवर। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो टॉन्सिल है, ग्लैंड है, ये इफेक्ट करते हैं
ठीक है जी, इनलार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनलार्ज। बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन, क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। इसका कॉजेटिव आर्गेनिज्म एब्स्टन बार वायरस, एब्स्टन बार वायरस, एब्स्टन बार। इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिस तरह बहुत सारी डिजीजों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये भी जो है 7 डेज से आई थिंक 7 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है जनाब। और ये डिजीज होती है यंगों की, यंग लोग जो होते हैं उनकी डिजीज होती है, यंग एडल्ट से होती है और ज्यादातर ट्रांसमिट होती है किसिंग से ट्रांसमिट होती है जनाब। किसिंग से ट्रांसमिट होती है। बाज़ मियां बीवी की रात में डेथ का यही काज निकालते हैं, इन्फेक्शंस मोनोन्यूक्लियोसिस, किसिंग। इसके अंदर पेशेंट्स को जो है पेन होता है, टेम्परेचर होती है, सोर थ्रोट होता है, बॉडी एक होता है, अनइजी जो है फील करता है पेशेंट। ये सारी साइन सिम्टम हमें इसके अंदर मिलेगी इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस। इसका एक पीरियड है, अगर कोई मेजर इंस्टेंस नहीं होता तो अपने पीरियड पे खुद ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम पैदा करेगा तो अकॉर्डिंग टू सिम्प्टोमेटिकली आप इसको ट्रीट करेंगी, लेकिन इन लोगों को एम्पिसिलिन नहीं देनी। क्या नहीं देनी? एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन से ही सेंसिटिव होता है तो रेश निकलाते हैं पूरी बॉडी के, पूरी बॉडी में से रेश ही रेश बन जाएंगे। इसलिए एम्पिसिलिन इज अ कंट्राइंडिकेशन इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में एम्पिसिलिन इज कंट्राइंडिकेटेड। अगर सवाल आएगा कि व्हिच ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस तो आपने एम्पिसिलिन को टिक करना है। ठीक है जनाब। और टेस्ट कैसे करेंगी जिससे आप इसको करेंगी? सबसे अहम है यहाँ ब्लड सीपी। क्या होगा? ल्यूकोसाइटोसिस, मोनोसाइट, इसीलिए लफ्ज वहां पर है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोसाइट्स बढ़ जाएंगे बेशुमार, जो कि वैसे बढ़ते नहीं है, और डिजीजों में होते ही नहीं। और आप देखेंगे ये ले भाई ये तो यहाँ पहुंची इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है। तो ब्लड सीपी यहाँ की इन्वेस्टिगेशन है। क्या है? की इन्वेस्टिगेशन। और अगर उसने बगैर उसको पता ही नहीं है और खा के आया और आपने गला देखा और सारी चीजें देखी कि एक जो है इनलार्ज है, टॉन्सिल्स यूनिलेटरल जो है इनलार्ज हो गया है और स्क्रैच है, तो क्लिनिकली आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। लेकिन क्लिनिकल के बजाय फिर हम अपनी एक इन्वेस्टिगेशन पे जोर देंगे जिसको ब्लड सीपी कहते हैं। तो ब्लड सीपी हमें क्लियर कर देगा कि ये कौन सी डिजीज है। अगर इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस नहीं आता तो डोंट वरी, ठीक है भाई। फिर उसको सोर थ्रोट करके आप जो है ट्रीट करेंगे, समझ रही हैं। और सोर थ्रोट हमेशा मैंने ये कहा कि परेशान नहीं होते, हमेशा सिम्प्टोमेटिक होती है। हमेशा आपने देखा कि भाई इसको टेम्परेचर और ये है, एक आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेनी है, एक पेन किलर लेनी है, पेशेंट को रेस्ट करना है, रेश है तो एंटी एलर्जी देंगी, वोमिटिंग है तो एंटी वोमिटिंग देंगी, उसके बाद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे, रेस्ट देंगे। तो हर बीमारी ऐसी ट्रीट हो रही है। कोई आप किताब खोलेंगे तो कोई खास नहीं कि इसमें पता नहीं क्या लिख दिया होगा डॉक्टर ने, इसमें क्या लिख दिया होगा, ऐसा नहीं। ट्रीटमेंट यही है ही, ट्रीटमेंट इससे बाहर है नहीं मेडिसिन। कोई भी चीज देख लें आप, खून आ रहा है तो ट्रांसामिन दे देंगे आप, ठीक है। उल्टी हो रही है उल्टी दे देंगे, चक्कर आ रहा है चक्कर की गोली दे देंगे।
आपने प्रिवेंशन और काज ढूंढना, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। ये चीजें तो सारे हमसे अच्छे स्टोर वाले जान रहे होते हैं, उल्टी की कौन सी है, दर्द की कौन सी है, एंटीबायोटिक कौन सी है, तो सब हमसे ज्यादा नाम भी जानते हैं हमसे, हम तो बहुत कम नाम जानते हैं, लेकिन वो ट्रीट नहीं कर पाते। क्यों? पता ही नहीं किस वजह से हो रहा है, किस वजह से। ये आप लोगों का एम है कि किस वजह से हो रहा है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ हम देंगे ब्रेक कि ये डिजीज है और ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैठते ही अच्छा इन्फेक्शन मोनोनुक्लियोसिस काज बताएं, अच्छा पल्मोनरी सिंड्रोम के आप साइन सिम्टम बताएं, आप विंसेंट angina का काजेटिव ऑर्गेनिज्म बता दें, ठीक है जनाब। और इसी तरीके से आपसे जो दूसरी जो है साइड की जो कुछ ली जो सवाल जो निकाल के कि ये बता दें भाई, आप फ्रेंजियल पाउच के काज बता दें, तो इसी तरह वाइवा स्टार्ट होता है। तो ये बहुत अहम है, इनको छोटा ना समझे। बाद का सिर्फ आपके नोट डले होते हैं, राइट डाउन 2 short note, Plummer Vinson syndrome, and give the causes of pharyngeal pouch. सवाल ही पूरा कर दिया, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से आप इसको ले